स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। अल अमान स्कूल में आज़ादी का जश्न, बच्चों का देश प्रेम। अल अमान स्कूल में स्वतंत्र दिवस को बड़े ही जोश और देशभक्ति की उमंग के साथ मनाया गया। स्कूल के मैदान में तिरंगा गर्व के साथ लहराया गया। बच्चों ने आज़ादी के मतवालों को याद करते हुए देशभक्ति के नगमे, भाषण और सामाजिक संदेश का प्रदर्शन किया। बच्चों ने हर भाषा में स्वतंत्र दिवस की बधाई देकर अनेकता में एकता का अनोखा संदेश दिया। इस अवसर पर अल अमान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, सेक्रेटरी, टीचर और स्टाफ के अलावा अन्य सम्मानित अतिथि मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों के उत्साह की सराहना की। रंग बिरंगी सजावट और लहराता हुआ तिरंगा पूरे प्रोग्राम का आकर्षण का केंद्र बना रहा। Good morning, respected dignitaries, principal, teachers, and my dear friends. Myself, Yam Hussain Sheikh, from class 10th, the head boy of this Al Aman English Medium School. Today we are gathered here to celebrate 79th Independence Day of our great nation. This is not just a date on the calendar. It is a day that marks the birth of a free India. After decades of sacrifice, struggle and courage, our country broke the chain of British rule and stepped into the light of freedom. This freedom was not gifted to us. It was earned through the tireless efforts and sacrifices of our great freedom fighters. Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Khan Abdul Ghaffar Khan, Tipu Sultan, Maulana Abul Kalam Azad and many other countless leaders which may be unknown and whose courage will never be forgotten. Independence Day reminds us that freedom comes with responsibility. It is our duty to respect the sacrifices of our heroes by being honest, disciplined and dedicated citizens. As the youth of this nation, we hold the power to shape India's future through education, unity and hard work. Let us promise today to uphold the values of our Constitution, to stand against injustice and to work together for a nation where equality, peace and progress shine bright. My dear friends, the tricolor that flutters above us is not just a flag. It is the symbol of our pride, unity and the dreams of 1.4 billion Indians. Let it inspire us every day to do our best for our country. दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Arun Indikar. Do you know what day is today? Yes, it is Independence Day. Long ago, our India was not free. British people from far away ruled us. We want freedom. Brave like Gandhiji and Bhagat Singh said. Gandhiji and Bhagat Singh said that we want freedom. One day on 15 August
1947 India became free. Thank you. Jai Hind. ಬರಕಾತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಗುರುಗಳೇ, ಗುರುಮಾತೆಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಬಾನದಾಫ್. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತ ದೇಶ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿನ. 1947ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾ ದಿನವಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸು ಮತ್ತು ಏಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ವರ. ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ವರವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हम लोग पराए हैं न मेहमान वतन है, हम लोग मुसलमान हैं, हम शान वतन है, हकदार वतन हम है, दिलो जाने वतन है, हकदार वतन हम है, दिलो जाने वतन है. हम तेरी हिफाजत को यूं तैयार मिलेंगे, दुश्मन से तेरे पर सर बेकार मिलेंगे. हम तेरी हिफाजत को यूं तैयार मिलेंगे, दुश्मन से तेरे पर सर बेकार मिलेंगे. आ जाएगी तुझ पे तो यूं बेदार मिलेंगे, जेलों में मिलेंगे असरेदार मिलेंगे. हर दौर में हर वक्त पे कुर्बान वतन है. मोहतरम सदर जलसा, असातिज़ा इकराम और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज मेरी तकरीर का उन्वान है जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार. सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद. अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी माओं के पेट से आज़ाद पैदा फरमाया और तमाम अशिया से ताबे बनाकर हजरत इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया. कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न व इंसा इल्ला लियअबुदून. और जाहिर सी बात यह है कि वो मालिकुल मुल्क जिसने इसे पैदा फरमाया और तमाम चीजों को इसके लिए मुख्तर फरमाया, वही आज इस इंसान का आका व मालिक है. इंसान इसका ममलूक और महकूम है, तो फिर वो कैसे अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की गुलामी को कबूल कर ले? हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने एक जमाने से हुकूमत किया. अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लुकमा समझा. गीदड़ की चालें, लोमड़ी, मक्कारियों से हिंदुस्तान में ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं. कहाँ से आई निगारे सबा किधर हो गई, कहाँ से आई निगारे सबा किधर हो गई. अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं. निजात दीदा ओ दिल की घड़ी नहीं आई. चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई. थैंक यू वन एंड ऑल. बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे. मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयां, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयां. यादगारे चमन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे. ऐसा भी क्या हासिल किया है भारत ने इन 75 सालों में जो तुम जश्न मना रहे हो? पहले ही प्रयास में मंगलयान मंगल ग्रह तक पहुंचाया, सबसे कम लागत में चंद्रयान बनाया,
आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, एनडीए और फौज में लड़कियों को दाखिल कराया, हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, समानता, आत्मनिर्भरता लोकतंत्र और न्याय, इनमें से भारत में क्या नहीं आया? और तुम पूछ रहे हो भारत 75 सालों में क्या हासिल कर पाया? अरे भाई, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें। आप लोगों से पूछती हूँ मैं, क्या यही है आजादी के मायने? क्या यही है आजादी का मतलब? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुँचा दिया, पर क्या लोगों के घर आंगन तक मंगल कर पाए? चंद्रयान तो बनाया, पर क्या आम जनता की सोच को इतना ऊंचा कर पाया? तो पेश है आपके सामने आजाद भारत का ताजा फूल घर आंगन में गाय फूल। अरे साहब, फूल ले लो साहब। नहीं चाहिए। अरे साहब ले लो साहब, बगीचे से तोड़ के लाया हूँ साहब। एक बार मना किया ना, नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता तुझे? अरे साहब ले लो साहब, आपकी बीवी खुश हो जाएगी साहब, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। सारी गाड़ी खराब कर दी। तुम जैसे छोटे लोग और कर भी क्या सकते हो? 75 सालों में भी हम अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। अमीर और भी अमीर और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। मैं पूछती हूँ आप सबसे, क्या यही है आजादी? जो तेजी से बढ़ती जा रही है मोबाइल और सोशल मीडिया की ओर। जो युवक पहले खेलता था मैदान में, आज वे लगा रहता है पबजी और इंस्टाग्राम में। स्मार्टफोन बन गया है इस युग में इतना खास, अगर फोन है हाथ में तो हम होते हैं ठीक ठाक। बेटा, ओ बेटा, सुनो, मुझे भूख लग रही है, जरा खाना ले आओ। छोड़ ना, तू कोई और दे देगा खाना, आजा तू मेरे साथ सेल्फी ले। ये आजकल के बच्चे भी ना फोन के आगे ऐसे सेल्फी लेते हैं जैसे इनके मुंह को लकवा मार गया हो। बेटा, तुम तो सुनो बेटा, ना जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। अगर ये ऐसे ही खेलेंगे पबजी तो आगे जाके बेचेंगे सब्जी। बेटा, तुम तो सुनो बेटा। यार तूने वो नई वाली वेब सीरीज देखी? क्या नाम था उसका? ना जाने आजकल के बच्चे किस वेब सीडी की बात कर रहे हैं। हमारे जमाने में तो सांप सीढ़ी हुआ करता था। बेटा, तुम तो सुनो बेटा। अरे दादाजी आप जाओ यहाँ से। तो देखा आप लोगों ने, ये क्या हो गया है आज की पीढ़ी को। मोबाइल फोन के आगे किसी की बात तक नहीं सुनते। कहाँ गए इनके संस्कार? आजादी, आज के इस आधुनिक काल में हमने अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया में कैद कर लिया है। क्या यही है हमारा डिजिटल इंडिया, जहाँ मोबाइल के हाथ में आते ही हम बाहर की दुनिया को भूल से गए हैं? ना पढ़ाई लिखाई में लगता है इनका बिल्कुल ध्यान, मोबाइल और सोशल मीडिया के आगे करना भूल गए सबका सम्मान। अब जरा नजर डालें, के साथ आती है। अरे वर्मा जी कैसे हैं? हम बढ़िया, आप बताइए। बस सब बढ़िया, आपकी दुआ है। अरे यार, क्या करोगे इतना ओवर टाइम करके? क्या होगा इतनी कमाई का? अरे आप तो जानते हैं कितनी महंगाई है, ऊपर से बच्चे को अच्छे कॉलेज में दाखिला भी दिलाना है। समय के साथ साथ त्याग और बलिदान का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। पिता के परिश्रम और माता के बलिदान से छोटू ने अपने सपनों की उड़ान भरी, पर उसकी शादी के बाद वो कुछ बदल सा गया। देखिए क्या हुआ आगे। अरे बहुरानी सुनती हो? क्यों परेशान करते हो बहुरानी को? अरे भाग्यवान, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? क्या ही बोलूं, तुम तो चले जाते हो ऑफिस, तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे वो तुम्हें परेशान कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं थे? नहीं नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, वो तो मुझे जल्दी भी नहीं जगाते। अरे वो अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए तुमसे काम की बोलते होंगे। ठीक है, मुझसे नहीं होती तुम्हारे माँ बाप की सेवा। या तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ या मैं मायके चली जाती। अरे नहीं, तुम मत जाओ, मैं ही मम्मी पापा से बात करता हूँ। छोटू बेटा, हमने सब सुन लिया है। बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं और तेरी माँ सुबह ही वृद्धाश्रम के लिए निकल जाएंगे। पर कितनी अजीब बात है, हमने मिलके तुम बच्चों को पाल लिया, पर तुम बच्चों पे तो बूढ़े माँ बाप नहीं। मैं पूछती हूँ आप लोगों से, क्या यही है आजादी? हमारे यहाँ आज भी बुजुर्गों को उन्हीं के घर में किसी न किसी कारण से प्रताड़ित किया जाता है। हम देश की आजादी का महापर्व मना रहे हैं, पर क्या हम सच में हर रूप से आजाद हैं? तो आइए इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बनाने का प्रण लेते हैं।
देश का पूरा सम्मान, स्वच्छता का पूरा ध्यान, नारी का पूरा सम्मान, कर्तव्यों का पूरा मान, संस्कृति का पूरा मान, माता पिता का सम्मान, देश प्रेम को सबसे ऊपर, इसीलिए तो कहते हैं हमको। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।